Continuously, there have been 15 science and technology questions that have been asked. 15 science and technology के question every year since 2011 to 2025 have been asked on average. And protein is the entire game of life which we are going to study in case of biotechnology, recombinant DNA technology, genetic engineering. सब कुछ इस चीज से रिलेटेड ही है. हम लोग reverse engineer करेंगे. This is a cell. Now let me know in the comment section what's the difference between animal cell versus plant cell. Health, environment, agriculture, medicine, everything is related with biotechnology. So that is why there are recent discoveries. जैसे एपिडेमिक हुई तो उसका सोल्यूशन, कहीं पे फूड सिक्योरिटी का इशू था 70s में इंडिया में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन. हाउ इज जुरासिक पार्क रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी? Welcome to Super Start with NCERT. Let's cover one of the most repetitive topic of UPSC prelims and mains, that is biotechnology. Let's start with a very simple, very interesting question. What do you think is common between all these biomolecules, all these words which are associated with living organisms, with our body, with us? Tell me in the comment section. Think about it. Hemoglobin, insulin, actin, myosin, enzymes, collagen. Until you find the answer, let me give you a little bit overview what we are going to cover in this specific lesson. We will cover some part of cell biology which is relevant to UPSC. Everything is related, is being covered, will be taught in respect of UPSC prelims and mains. Okay, cell biology, genetics, that is heredity, mutation, and biotechnology. Surprisingly, all of these topics are around 400 to 500 pages in all the NCERT from class 8th to 12th. And we are going to cover all of these things in less than 45-50 minutes. Because, okay, let me tell you a little bit what is the relevance of this specific session first. If you see this graph over here, continuously there have been 15 science and technology questions that have been asked. 15 science and technology के question every year since 2011 to 2025 have been asked on average. This is separately from environment and ecology questions. Okay, so if you combine science and tech plus environment and ecology, there is around 35 to 40 questions per year. On average, it must be around 32, 33 questions every single year. And this is further represented that why students are feeling problem in this specific topic is, if you see this graph, which most of you have filled, more than 1,000 students have told that only 20% of environment and ecology and science and technology they are able to cover. I will show you the responses over here. Like if we compare all the different subjects by themselves, they are able to do polity, economy, all the different subjects, but science and technology and environment and ecology, they are still finding it difficult, and it is becoming increasingly more difficult in the recent years. Now, why I am taking these sessions? We understood, okay, 15 to 30 questions will be there from science and technology plus environment and ecology. I will take both of these subjects, is science and technology and environment and ecology. I love taking these classes. Why? Because my background, I'm a PhD dropout in biomedical research. So I love everything around science, biology, biomedicine, environment. So this is my expertise over here. Number one. I will also tell you very interesting aspect why biotech. If you see the last 14 years of previous year questions, there are around 32 questions which have been asked from just one topic. Students who are new, just keep on answering
what is the common in between these words written over here in relation to living beings, living ecosystem. Okay, so coming to biotechnology, 32 questions, that means more than 2 questions every year from biotech. बट सर वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई यूपीएससी इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी? हम लोग देखो, ऑल द क्लासेस दैट आई विल बी टेकिंग दैट विल बी वेरी फंडामेंटल, वेदर यू हैव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग और एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आपको कोई भी किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी डाउट महसूस हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप जाओ और डाउट मेंशन करो. इन द नेक्स्ट क्लास विच आई विल टेक आफ्टर 2 days, आई विल डेफिनेटली टेक अप ऑल दीज डाउट्स. ठीक है, कहीं पे कोई भी डाउट हो. तो बायोटेक क्यों रेलिवेंट है, इस पे अपन आते हैं. पहले इसका आंसर है क्या? इसमें रेलिवेंट है दैट ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? ऑल ऑफ दीज आर प्रोटीन. ओके, एंड प्रोटीन is the entire game of life which we are going to study in case of biotechnology, recombinant DNA technology, genetic engineering. सब कुछ इस चीज से रिलेटेड ही है. हम लोग रिवर्स इंजीनियर करेंगे प्रोटीन. तो जिंदगी स्टार्ट होती है बेसिकली सेल से. थोड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ लेते हैं पहले. ठीक है, बायोटेक जो मैं बता रहा था क्यों रेलिवेंट है, द रीजन इज बायोटेक is very much related with the current affairs, whether it is happening in case of health, for example COVID vaccines, that is a result of biotechnology, whether it is agriculture, our green revolution, BT cotton, BT brinjal, DNA fingerprinting, gene cloning, production of ethanol from sugarcane, production of biodiesel, cleaning of environment with the help of bioremediation. Basically, biotechnology have wide ranging overlap with everything in relation to human health, environment, agriculture, medicine. Everything is related with biotechnology. So that is why there are recent discoveries. जैसे एपिडेमिक हुई तो उसका सोल्यूशन, कहीं पे फूड सिक्योरिटी का इशू था 70s में इंडिया में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन. हमारा डेयरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी मिल्क. ठीक है, तो उस पर हम लोग कैसे सेल्फ रिलायंस बने, वाइट रेवोल्यूशन. ऑल ऑफ दीज इज द रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. दूसरा पार्ट है, दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी. एज यू रेड कि एथिक्स के केस भी इसमें आ जाते हैं, वेदर बीटी कॉटन शुड बी रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट और नॉट. इट रिलेट्स विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज वेल. इट रिलेट्स विद whatever epidemics or new diseases which are going on. It relates with solving new challenges of food security, etc. So since as a UPSC aspirant, as a well-aware citizen, we should know what is happening in different fields which are surrounding us: health, environment, agriculture, industry. So that is why biotechnology becomes so relevant, and every year more than 2 questions have been asked. By the end of this class, I promise you, you will be able to solve all the mains questions, all the GS3 mains questions that have been asked in biotechnology. Prelims questions थोड़े से difficult level के हैं. 5-6 questions out of 30 आप solve कर पाओगे. But after 3 classes, I promise you will be able to solve 100% questions. ठीक है, 100% क्वेश्चंस आपको अगर सॉल्व करने हैं बायोटेक के, इवेंचुअली साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, दैट इज 30% to 35% ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ GS3 एज वेल, एनवायरमेंट. तो आपको कुछ चीजें करनी है. आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के टारगेट्स मिल रहे होंगे, सुपर स्टार्ट विद एनसीईआरटी के. वट एवर वी आर टेकिंग एज सेशन का वीडियो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड मेंस क्वेश्चन एज वेल. This is the only initiative in the world where you will be able to evaluate
your mains answer right away, plus you will also get your model answer. Many students will ask, sir, I have just started my prelims preparation, why should I write mains? It is important. Your GS prelims and mains preparation should go together, and I will ask very, very simple questions. The beauty is, if we are studying in a group, in a cohort, we are more competitive. We will get more information, more learning, more mistakes, and we will also have live discussion on this Sunday as well. So आपको ये सारे के सारे टारगेट्स करने हैं कंप्लीट, प्लस वट एवर स्कोर दैट यू आर गेटिंग, यू हैव टू कमेंट with your doubts, problems, achievements, so that I get motivated, I get clarity what I should do in my next session. ठीक है? By the end of this session, I will make you cover class 8th, 9th, 10th, 11th and 12th NCERT of this specific topic. I will also screen share and show you page by page of the chapters that we have covered, which is relevant for UPSC. Okay, now let us go towards certain fundamental, very very fundamental. UPSC में कभी भी laws, equations, very much fundamental एकदम से फॉर्मूले वो नहीं आते हैं, बट हमारे लिए बायोटेक का फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो मैं बस टॉपिक देख लूं जो मैंने आपके लिए लिखे थे, ये मैंने कर लिया कवर, डन. You will get all the list of chapters of NCERT that we are going to cover over here. Class 8 में chapter 8 है, ऐसे पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे with a chapter name मिल जाएगी. ये सब हम आज ही करेंगे. Now let's go towards the fundamental. We discussed about the protein. Let's write protein over here. यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म है. This is the most fundamental aspect. So what I am telling you is the fundamental of cell biology and biotechnology, genetic engineering. This is a cell. Now let me know in the comment section what's the difference between animal cell versus plant cell. बताओ जल्दी से comment section में. सर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में, उसके अलावा बताओ. Tell me any other difference. ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, और अंदर ये पूरा न्यूक्लियस है. दिस इज आवर सेल. क्लियर? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल. इसको हमने बड़ा किया, इस वाले पार्ट को ना हमने बड़ा किया. अच्छे से करते हैं. आप लोग चाहो तो कॉपी पे ड्रॉ भी कर सकते हो आपके. तो ये बेसिकली ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जीनोम. ठीक है, टाइटली पैक्ड हिस्टोन प्रोटीन उसको बाइंड करके रखते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक्ड होता है. इसको अगर हम एक डीएनए स्ट्रैंड को, इफ वी elongate one single DNA strand of human, it will be 6 feet long. It will be 6 feet long. Can you imagine? तो यहां पे ये क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के इस पार्ट को हमने elongate किया, इतने से पार्ट को elongate किया, तो ये हमारा DNA. Beautiful double helical structure of DNA given by, this model was given by Sir Watson and Crick and they got Nobel Prize for this. ठीक है, double helical structure of DNA. अगर हम इस DNA के एक स्पेसिफिक पार्ट को, which is a line of code, अब ये कोड क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. इस लाइन ऑफ कोड का एक पार्ट जो अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम बोलते क्या है? जीन. दिस इज द लाइन ऑफ कोड. लाइन ऑफ कोड कैसे? अगर हम इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, मैं बड़ा करके दिखाता हूं फिर दोबारा समझाता हूं. तो लाइन ऑफ कोड इज द डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस ए सी टी जी whatever, जो भी इसके सीक्वेंस होता है, C G G T A, and this is coded on this thread. Adenine by thymine, cytosine with guanine, thymine with adenine, guanine with cytosine. So you don't need to remember this double bond, single bond. Basically, if we take this specific code,
दिस इज नोन एज जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बीच में क्या आएगा, ऑब्वियसली यहां पे हमारा बनेगा एक बार mRNA, इसको लिखता हूं मैं दोबारा, एंड mRNA विल कोड प्रोटीन। तो ये हमारा पूरा सेल का स्ट्रक्चर हुआ कि हाउ डज फ्रॉम सेल प्रोटीन इज फॉर्म्ड। लेट मी राइट दिस अगेन फॉर यू। द फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, इट इज नोन एज व्हाट, याद करो, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। ये हो गया रेप्लिकेशन। The making of from DNA, the making of mRNA, it is what? Transcription. This is known as what? Transcription. Transcription. And from mRNA to protein with the help of ribosomes, it is known as what? Translation. So gene is nothing but a sequence on DNA that can code a protein. Gene is nothing but a sequence on DNA, a code on DNA which can code protein. समझ गए आप? अब वो कोड जैसे सीक्वेंस कैसे हो सकता है, मल्टी बिलियन पेयर्स भी हो सकते हैं। अब मैं लिखूं एक सीक्वेंस, अब ये एक सीक्वेंस हो गया, ये इसकी पेयरिंग हो जाती है, सी सी ए टी सी जी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है इन केस ऑफ डीएनए। इन केस ऑफ आरएनए दिस टी इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। दिस इज वन डिफरेंस इन आरएनए। प्लस इन डीएनए देयर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, इन आरएनए देयर इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज शुगर। तो ये डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस होता है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ थाइमीन। तो ये हमारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम साइंस में क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। इसको समझना जरूरी है बिकॉज इसके बाद जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। तो ये हमारे समझ में आ गया, डीएनए जो कि न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में कंबाइंड, उसके एक स्ट्रैंड को डीएनए बोलते हैं, उस पे एक लाइन ऑफ कोड को जो मैंने बताया था वो आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया, एंजाइम्स, कोलेजिन, एक्टिन, मायोसिन, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मल्टीपल हार्मोन्स, केराटिन, ऑल दीज आर प्रोटीन। तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोसेस इज फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ आई विल टेल यू कि दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, more important than we are thinking, because protein is basically an expression, है ना। मान लो योगा इज अ फॉर्म, बट अगर आप 10 साल तक लगातार योग कर रहे हो, उससे जो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी या एनर्जी लेवल रहेगी, दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ योगा, राइट। तो यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ बाय अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस, आर साइंटिस्ट, आर अमेजिंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड रियलाइज कि अगर मान लो कोई यहां पे कोई कीड़ा है, कोई बैक्टीरिया है, उस पे एक ऐसी जीन है कि जिससे पेस्टिसाइड्स मर जाते हैं, सॉरी पेस्ट जो है वो मर जाते हैं, है ना। या फिर एक ऐसा कोई प्लांट है जिसमें विटामिन ए कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, क्या हम इसकी जीन को वीट में ट्रांसफर कर सकते हैं या राइस में ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या इसकी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्वालिटी को क्या हम राइस में या कॉटन में ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज यूज्ड बाय बॉडी टू रेगुलेट शुगर, राइट। जिन पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, जिनमें इंसुलिन की कमी है, क्या वो इंसुलिन हम एक नेचुरल इकोसिस्टम में उसके जीन को कोड करके बना सकते हैं? तो इसके लिए हमारा जन्म हुआ एक प्रोसेस का जिसको बोलते हैं जीनोम मैपिंग, ठीक है, कि किसी भी एनिमल के जीनोम को निकाला और उसको मैप कर लिया। मैप मतलब कि उसमें क्या क्या जीन है और वो क्या क्या एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेस मतलब वो प्रोटीन क्या क्या बनाती है। इसी तरह का बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नाम था, क्या नाम था बताओ? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट
most expensive startup of the world, you can say. Most expensive initiative by the global community of researchers, and India was also part of it. I was very, very fortunate during my masters plus PhD in Delhi University that I was there when all of this magic was happening. It was completely magical. So Human Genome Project was started when I was in 9th class, 2003. Human Genome Project. ह्यूमन के जीन को मैप करना, किस किस जीन से क्या क्या एक्सप्रेशन होता है, अगर हमें कोई डिजीज होती है तो क्या उसके लिए जीन कोई रेस्पॉन्सिबल है, क्या हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस ह्यूमन को क्या डिजीज होगी, विच इज नाउ द कंसेप्ट ऑफ कॉल्ड प्रिसीजन मेडिसिन. तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, $multi-billion खर्च हुए. इंडिया में स्टार्ट हुआ 2010 में और मेरी मास्टर्स भी स्टार्ट हुई 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई वाज इन अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, अमेजिंग इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च. इससे मात्र 300-400 मीटर दूर था IGIB. IGIB is a CSIR lab. I used to go there to discuss Human Genome Project and multiple other research on tea with various researchers studying there. अभी IGIB साउथ दिल्ली में शिफ्ट हो गया, पहले दिल्ली DU नॉर्थ कैंपस में था. जब यमुना में बाढ़ आई थी 2010 में तो IGIB तक भी पानी आ गया था, तो काफी इंटरेस्टिंग मेमोरीज है वहां की. तो IGIB ने इंडिया में ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन की जिनोम मैपिंग स्टार्ट करी थी. एंड उस समय सर थे CSIR के जो चेयरमैन थे, डॉक्टर समीर ब्रह्मचारी सर. इफ यू रीड अबाउट हिम ऑन द इंटरनेट, एक्सीलेंट वर्क डन बाय हिम इन साइंसेज, इन क्लासिकल साइंसेज. तो उन्होंने, उनकी टीम ने ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट और एंड किया था और एग्जीक्यूट किया था पूरा का पूरा 2010 में. वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू बी स्टडीइंग साइंस. सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई लव बायोटेक्नोलॉजी सो मच. एक बार आप लोगों के लिए ओपन कर लें. हाँ ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, हमने जीन पढ़ लिया. अब बायोटेक का मतलब क्या होता है सर? बायोटेक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतना रेलिवेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? द मीनिंग ऑफ बायोटेक इज हाउ वी कैन यूटिलाइज living organisms and or you can say biological systems for human and environment benefit. For human and environment benefit. Obviously हम लोग greedy हैं तो human part is bigger, है ना? तो ये है पूरा बायोटेक्नोलॉजी. अब इसके बहुत हिस्से हैं. हिस्से क्या है कि जब जेनेटिक्स का, जिनोम का मैनिपुलेशन होता है ये सब करने में, ये बेनिफिट करने में, तो उसको बोलते हैं क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? इन शॉर्ट वर्ड्स, चेंज इन द DNA और जिनोम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसके एग्जाम्पल हम बात करते हैं. इसमें बेसिक स्टेप क्या है? पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही बात कर लेते हैं क्योंकि यही हमारा बेसिकली रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है. कैसे बात होती है? जैसे हम बात करते हैं कि सर ये BT कॉटन UPSC में सबसे ज्यादा है. दिस इज द मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट, BT कॉटन एंड BT ब्रिंजल. ठीक है, मैं ये पढ़ाता हूं, आप लोगों का होमवर्क है. टेल मी अबाउट फ्लेवर सेवर टोमेटो. दिस कैन बी आस्क्ड इन UPSC. टेल मी अबाउट फ्लेवर सेवर टोमेटो. अब हम जो भी बात करेंगे वो एग्जाम में आ सकता है. फोकस रखो. बहुत सारे NCERT के चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब जाके इतनी आसान भाषा में आप ये बात समझ पाओगे. तो टेक लाइक इंपॉर्टेंट समझो इस लेसन की और एंड टू एंड देखना है. कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट करो. टेल मी अबाउट गोल्डन राइस एज वेल इन द कमेंट राइट नाउ. डू नॉट यूज इंटरनेट. आता है नहीं आता है कमेंट, नहीं भी आता तब भी कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अपनी पढ़ने की बेसलाइन क्या है. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BT कॉटन, BT ब्रिंजल. व्हाट इज BT? व्हाट इज BT? कमेंट फास्ट 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 फास्ट. पॉज करो, कमेंट करो. व्हाट इज BT? BT is Bacillus. BT is a bacteria found in soil
इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो सकती है, बट बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, ठीक है। ये फुल फॉर्म है इस बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम। नॉट इंपॉर्टेंट, बीटी याद है बहुत है। सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, ये याद रखो कि बीटी मींस। अब इसमें एक जीन होती है कॉल्ड एज क्राइजीन, नाम सुना होगा। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन यूपीएससी फ्रॉम क्राइजीन, डायरेक्ट क्वेश्चन इन यूपीएससी फ्रॉम बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल इन लास्ट 10 years, मल्टीपल टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्राई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राई? क्राई होता है, क्राई का मीनिंग है क्रिस्टल जीन। व्हाट डज इट डू? जब कोई भी एनिमल ये क्रिस्टल प्रोटीन जो खाता है ना, तो उसकी जो कोई भी एनिमल है, पेस्ट, कैटरपिलर्स, ठीक है, जब कैटरपिलर्स या इससे रिलेटेड इस कैटेगरी के जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वो ये खाते हैं, तो उनकी ये जाके गट में लाइन कर जाता है ये प्रोटीन, और फिर गट को रप्चर कर देता है, गट रप्चर, एंड द एनिमल, दिस पेस्ट गेट किल्ड। ओके, सो अब साइंटिस्ट ने सोचा कि यार कैसे इस जीन को हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स में ट्रांसफर करें जिससे दिस जीन एक्ट एज अ पेस्टिसाइड, तो हम अपनी क्रॉप की प्रोटेक्शन कर पाएंगे, है ना। अब बताता हूं क्या किया। अब साइंटिस्ट ने, मान लो ये है बैक्टीरिया की जीन और ये है हमारी इस प्लांट की जीन, है ना। अब इन्होंने यहां पे मॉलिक्यूलर सीजर से कट लगाया, ये जीन थी किसकी? क्राई जीन की। तो ये जीन आइसोलेट करी, तो फर्स्ट स्टेप इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ जीन। जो हमें प्रोटीन चाहिए उसकी जीन आइसोलेट करी, फिर हमने उसको एक वेक्टर में ट्रांसफर किया। वेक्टर कैन बी प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, वो आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा, चिंता मत करो। तो हमने इसको ट्रांसफर किया एक वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर इज अ व्हीकल, है ना, एक व्हीकल है जिसमें हमने ये जीन जो है, जो तेरी न्यूट्रल व्हीकल है, उसमें ट्रांसफर करी और इसको यहां पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसको यहां पे इंसर्ट कर दिया। अब ये जीन हमारी यहां पे आ गई, यहां पे भी ये और ये वेक्टर ये कंबाइन हुआ और इसने थर्ड स्टेप में इस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये जीन ने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, ट्रांसफॉर्म हुआ। अब इसकी प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, कि वेदर स्केल पे रेप्लिकेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन किया, स्क्रीन करके जो सैंपल बेस्ट आए उनको हमने स्केल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पे हमारा जेनेटिक मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। ये स्टेप्स इतने जरूरी नहीं है याद करना, बट एक बार समझा दिया मैंने कि ये बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल बनते कैसे हैं। तो हमने एक बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की क्राई जीन इसमें डाली। अब इससे क्या हुआ, ये बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, दे बिकेम पेस्ट रेजिस्टेंस। जब पेस्ट रेजिस्टेंस होगा तो फिर क्रॉप की सिक्योरिटी बढ़ गई, तो क्रॉप का जो सर्वाइवल है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये है। अब इस पे बहुत एथिकल इश्यूज हैं कि हमें जेनेटिकली इसे जीएम क्रॉप भी बोलते हैं ना, ये दोनों। कोई भी क्रॉप विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड इज नोन एज जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसकी कुछ कमिटीज हैं, बॉडीज हैं, वो हम बात करेंगे कि डीबीटी क्या करती है, जीईएसी क्या करती है, बट दिस इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब भी लगभग यही है, आरडीटी, विच इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि दो तरह के जीन को मल्टीप्लाई करके एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में डालना जहां पे वो ह्यूमन या साइंटिस्ट जैसे चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर पाए। तो बहुत सारे हमें किसी प्लांट को, किसी फ्रूट को, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है, उसे पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड, जैसे गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए एक्स्ट्रा ऐड किया था, फ्लेवर्ड सेवर टमाटो में हमने उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करी थी। तो ये सब की सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ लिया। इसके अलावा टॉपिक्स
क्रोमोसोम, जीन फ्लो, बायोटेक, जेनेटिक। म्यूटेशन और हेरिडिटी में कुछ नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल है। म्यूटेशन इज नथिंग बट चेंज इन जेनेटिक कोड ड्यू टू नेचुरल रीजन, है ना, ह्यूमन नहीं कर रहा है, अपने आप हो रहा है। म्यूटेशन एग्जाम में बस पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन, इसके अलावा एग्जाम में नहीं आया बिकॉज इसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस ज्यादा नहीं है। एग्जाम में यूपीएससी वही टॉपिक ज्यादा पूछता है जहां पे प्रैक्टिकल रेलिवेंस बहुत है, तो बायोटेक के प्रैक्टिकल रेलिवेंस बहुत है। अभी गडकरी जी ने इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में बात करी है, गडकरी जी ने कितनी बार मोलेसिस की बात करी है ना, गडकरी जी ने कितनी बार ग्वार फली के बारे में बात करी है, बायोडीजल की बात करी है, तो इसलिए ये रेलिवेंट है। बायोटेक की एप्लीकेशंस आर रेलिवेंट, प्रोसेस यूपीएससी इतना नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी, जल्दी से कवर कर लेता हूं। हेरिडिटी में बस आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, इट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड इट हैपेंड वाया genetic material, which in most cases is DNA, in some cases can be RNA. DNA in most cases is double stranded, RNA in most cases is single stranded. Example of single stranded RNA is आपके HIV वायरस, आपका कोविड वायरस, आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। थोड़ी सी मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी ताकि कोई स्टेटमेंट आए कि ऑल DNA आर डबल स्ट्रैंडेड, ऑल जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, तो आप उस पर टिक करके गलती से ना आ जाओ। तो हमने ये कवर कर लिया। अब देखो, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, है ना, और मैं आपको एनसीईआरटी जल्दी जल्दी से बताऊंगा कि कैसे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और आपको इससे ज्यादा रेलिवेंट, और आपको माइटोसिस, मियोसिस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, तो यूपीएससी के सिलेबस में लॉजिकली फिट होता है, दैट इज द थिंग दैट वी वांट टू क्रैक, ठीक है। अब ये एक टारगेट है मेंस क्वेश्चन का, जो मैं आप लोगों को लिख भी देता हूं यहां पे। तो इसका मेंस क्वेश्चन का जो टारगेट है वो आप जरूर कर लेना अच्छे से। आप सबको ये आंसर लिखना है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द मेंस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी, यू कैन राइट इट डाउन, how can biotechnology help to improve the living standards of farmer, the living standards of farmers. This question was asked in 2019 GS3. Such a simple question. Now you will be able to answer. हमने गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, सबके बारे में बात कर ली है। ओके, तो अपना ये बायोटेक का और साइंस एंड टेक का एक इंट्रो पार्ट हमारा ये खत्म होता है। वी स्टडीड दैट साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं। साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मिला के 30-35 क्वेश्चन हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये कठिन लगता है, मैं इसे आसानी से पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने में मुझे मजा आता है, आपके डाउट सॉल्व करने में अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी टेस्ट आपको मिलेंगे आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा फॉर श्योर, वहां पे आप जब सॉल्व करेंगे तो उसका स्कोर जो आएगा वो प्लीज कमेंट में मेंशन करना, सो दैट इट हेल्प्स यू मोटिवेटेड। आई कैन ऑल्सो लर्न कि whether you are solving questions or not, and it will help other students to get inspiration from you. Whether you are getting 1 mark or 100 mark doesn't matter. The important is that you are putting efforts to learn a subject which might not be your cup of tea. If you find this lesson, this teaching way too easy, I can increase the way. If you want it's too high, I can decrease my level as well. Okay, तो अच्छा लगा. Now I will share my screen and will tell you little bit about the NCERT tool, as well as will share all the NCERTs which are relevant for this biotechnology, which has covered 32 questions in the last 14 years of prelims, almost more than 2 questions every single day. One last thing is Jurassic Park. How is Jurassic Park related to biotechnology? Let me know in the comment section. Okay? See you once again. Hello everyone. So we have finally covered this entire session.
These are all the chapters of different NCERTs from class 8th to 12th that I was talking about. Today we have covered fundamentals from class 8th to 11th and some part of 12th. In the upcoming classes, we will discuss mostly about class 12, chapter 6, 9 and 11th. We have already covered many important aspects, many important concepts from class 12th as well. And I promise you, if you have covered this session with entire focus, you were engaging with me in the session, you will be able to solve all the mains questions asked from biotechnology and some 4 to 5 prelims questions as well. By the end of these 3 sessions, आप सारे questions कर पाओगे. तो very quickly in the next 5 minutes, let's skim through what we did from class 8th to 11th और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है. That is the best part of this initiative. क्लास 8th की NCERT है, ठीक है. तो इसमें हमारा चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 8, ठीक है. अब इसमें हम जल्दी से जाते हैं. चैप्टर नंबर 8 हमारा 90 पे. This is our chapter number 8 of class 8th. This lesson you need to completely read. Very simple. Obviously class 8th के बच्चे के लिए है तो it's very easy to read. It will tell you very basic fundamentals, discovery of cell, what are the basic structural units of the inside the cell, number of cells, amoeba के बारे में, shape of cells, very basic. Difference between plant cell and animal cell, what is nucleus, what are chloroplast. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है. कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वेरी सिंपल, ठीक है. दिस यू विल कवर इन लेस देन 20 मिनट्स. क्लास 8th यहाँ पे खत्म हो जाती है. नाउ क्लास 9th में चैप्टर 5 एंड 15 वी नीड टू कवर. दिस इज आवर क्लास 9th. चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड चैप्टर 15 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. You will find more questions from improvement in food resources, chapter 15 of class 9th and chapter 9 of class 12th. These two chapters are related. तो ये हमको एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है. This chapter is important. You need to read back to back. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. This chapter actually you can skip, ठीक है. ये चैप्टर आप पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो. 57 पेज नंबर 57 पे चलते हैं एक बार. Yes, this is page number 57, chapter 5 of class 9th. This is more deep than class 8th, obviously. तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने इस सेशन में और यूपीएससी के लिए जो रेलिवेंट हो वो हमने कवर ना करा हो. तो इसमें नथिंग इज देयर. वही सेल वॉल, न्यूक्लियस, डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स, एनिमल सेल, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है. तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है. ये आप पढ़ सकते हो जस्ट एज अ रिवीजन, बिकॉज क्लास 8th का आपका रिवीजन हो जाएगा. तो यू जस्ट हैव टू स्पेंड 5 मिनट्स ऑन दिस चैप्टर, क्लास 9 चैप्टर 5. बट व्हेन इट कम्स टू चैप्टर 15 वो हमको बैक टू बैक पढ़ना है, ठीक है. चैप्टर 15 जो है विच इज दिस इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, है ना. वेरी स्मॉल चैप्टर, जस्ट अराउंड 7, 8, 10 पेजेस एंड ये अपने को कवर कर लेना है. ये हमारा क्लास 9th का रहा, ये आपका होमवर्क है. क्लास 10th यू कैन स्किप बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स कम्प्लीटली. आपके पास टाइम है तो एक बार इसका बेसिक पढ़ सकते हो, बट यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है. जस्ट लाइक यू विल नेवर फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन इक्वेशंस, फॉर्मूला फ्रॉम केमिस्ट्री. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन पार्ट पे. इसीलिए इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज एंड ऑल दीज चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. क्लास 11th यू कैन स्किप ऑल द पार्ट एक्सेप्ट chapter 9. Chapter 9 you have to study, not exactly remember completely, but एक बार पढ़ो. And I will also cover some part, some important UPSC relevant part from class 9th, because chapter 8 जो है class 11th का, it is same like fundamental unit of life, and it chapter 10th is cell cycle and cell division, ठीक है. तो यहाँ से क्वेश्चन माइटोसिस मियोसिस से कभी भी क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरह से नहीं आएगा. तो ये सारे का सारा हमने लगभग कवर कर लिया है. इसमें से आपको चैप्टर 15 कवर करना है बैक टू बैक एंड चैप्टर 8 कवर करना है बैक टू बैक. इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जीन क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड, दैट इज एग्रीकल्चर,
how to make water resistant plant, drought resistant plant, how to bio fortification. तो ये सारे टॉपिक्स हमने काफ़ी सारे आज कवर कर लिए हैं, एंड मैनी मोर वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग सेशन. सो वी विल स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन द नेक्स्ट 2 sessions regarding class 12th. We will solve all the questions that have come in previous year questions. Okay, so your homework is that mains question that I have given you, है ना, वो मेंस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है ना. It is over here. This is your mains question. How can biotechnology help to improve the living standards of farmer? You need to write the answer. Evaluate it on सुपर कलाम. कैसे कराओगे evaluate? बहुत सिंपल है. सुपर कलाम पे जाओगे, जहाँ पे आपके टारगेट होंगे, जैसे ये रहा मेरा NCERT पैक सुपर स्टार्ट, है ना. यहाँ पे आपको टारगेट ये मिल जाएंगे MCQ. ये रहा आपका मेंस क्वेश्चन. यू विल क्लिक ऑन evaluate now. Upload your answer over here. Question will come automatically. Just upload your answer. Let's say I try this sample answer and click on evaluate. Very simple. So please write your score in the comment section after evaluating your answer. Okay. It is so nice teaching all of you after such a long time. Very happy that my understanding of science and technology is being put to right use. So let's see in the next session. I will only take session if I get enough good response to this. Okay. Thank you. Bye.